Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to study a story about a bird in a tree. So let's start. A long time ago, a huge tree stood tall and straight in a forest. Its spreading branches were home to many birds who feasted on its fruit and used to twig and leaves to build their nest. In spring, when it was covered with fragrant flowers, bees and insects drank the honey in them. बच्चों, बहुत टाइम पहले की बात है, एक बड़ा सा ट्री था एक जंगल में. उसकी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस थी. उस ब्रांचेस में बहुत सारे बर्ड्स अपना घोंसला बना के रहते थे और उस पेड़ पे फल और फूल भी निकलते थे. फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आती थी जो बीज और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती थी. तो बीज और इंसेक्ट्स आके उसमें से हनी पीते थे. Squirrels play catch on its branches and ant march up and down its length as they went about their business. The people who lived in the forest often rested in the shade of the tree after a day's hard work. जो गिलहरियाँ थी वो आपस में खेलती थी, जो चींटियाँ थी वो ट्री पे अप डाउन मार्च करती थी और जो गांव के लोग थे ना वो उस पेड़ की छांव में आके रेस्ट करते थे. As for the children, the tree was not just a tree but a playmate. They strung rope from the strong branches to make swings, and if they want to hide their treasures, there were many hollows in the trunk which were perfect secret places. Life went on happily for the tree and the people. अब वहाँ पे बच्चे भी खेलते थे. बच्चे क्या करते थे, टहनी पर जो पेड़ की टहनियाँ होती है ना वहाँ पे झूला टांग देते थे और उस पर झूला झूलते थे. और जो ट्रंक होती है उसमें होल्स होते थे. उस होल्स में बच्चे क्या करते थे, अपना खजाना छोटा मोटा खिलौने छुपाते थे. But one day a terrible thing happened. A hunter was returning home after an unsuccessful hunt. When he saw a deer, very quietly he took out his last special arrow. Its tip was snared with a fatal poison and took aim. अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, उस जंगल में एक शिकारी आया. उस दिन उसने कुछ भी शिकार नहीं किया था. वो बहुत सैड था कि आज तो मुझे शिकार करने को कुछ नहीं मिला. लेकिन अचानक से उससे एक डियर दिखाई दिया. तो उसने अपना आखिरी तीर निकाला और उस डियर पे साध दिया. लेकिन उस तीर के टिप पे क्या था, एक पॉइजन लगा था, एक जहर लगा हुआ था. Twang went the bow string and the arrow sped towards its target. But luck was against the hunter. Quick as a flash, the deer darted to safety and the arrow pierced the tree. अब क्या हुआ, जैसे ही उसने उस डियर की तरफ वो तीर छोड़ा, वो डियर वहाँ से एकदम से भाग गया और वो तीर जो था वो जाके कहाँ लगा, उस ट्री पे लगा. So great was the force of the arrow that it was embedded deep in the heart of the tree. Try as he might, the hunter could not pluck it out. Cursing his luck at losing a valuable weapon, he went home disgusted. अब वो तीर जो था वो पेड़ को इतना डीप लगा कि वो हंटर उसे चाहकर भी खींच के निकाल नहीं पाया और निराश होकर अपने घर वापस चला गया. So the arrow remained stuck to the tree, slowly spreading its deadly poison. The tree was strong and healthy, so it silently fought this terrible enemy. At first, no one noticed the agony it was going through. Birds still nested in the tree, people still rested in its shade, and children still swung from its branches. But with time, the poison worked its
dreadful power. अब जो तीर था वो पेड़ में फंसा रह गया। अब उसका जहर जो था वो धीरे धीरे उस पेड़ में फैल रहा था। पेड़ जो था वो बहुत स्ट्रांग था, तो वो उस जहर से धीरे धीरे लड़ रहा था। इस बात को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बर्ड्स जो थी वो एज इट इज़ अपना नेस्ट बना रही थी। लोग जो थे वो उसकी छाया में रेस्ट करते थे और बच्चे झूला झूलते थे। बट विद टाइम द पॉइजन वर्कड इट्स ड्रीडफुल पावर. Slowly the leaves of the tree began to yellow, wither and fall off. The once strong branches snapped at the slightest touch. When spring came, no flower appeared. The straight, tall tree drooped and wilted, a pitiful shadow of its former self. अब धीरे धीरे जब जहर उसके सारे बॉडी में फैलने लगा ट्री की, तो क्या हुआ, उसकी जो लीव्स थी वो येलो होने लगी, झड़ने लगी। उसकी ब्रांचेस जो थी, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस थी, वो धीरे धीरे वीक होने लगी और जो स्ट्रेट ट्री था वो धीरे धीरे झुकने लग गया. वन बाय वन द बर्ड्स लेफ्ट. आफ्टर ऑल द ट्री गेव नीदर फूड नॉर शेल्टर. चिल्ड्रन फाउंड अदर ट्री टू स्विंग फ्रॉम एंड विद नो लीव्स टू ऑफर सूथिंग शेड, पीपल स्टॉप्ड रेस्टिंग बीनीथ इट. बच्चों, जब पेड़ वीक हो गया तो वन बाय वन बर्ड्स ने उसमें अपना घोंसला बनाना छोड़ दिया. बच्चों ने उस पर स्विंग टांगना छोड़ दिया क्योंकि उसकी ब्रांचेस वीक हो गई थी. अब वो झूला उस पर हैंग नहीं कर पाते. और जो लोग थे उन्होंने भी उसकी छाया में रेस्ट करना छोड़ दिया. ओनली अ सिंगल पैरेट स्टेड बिहाइंड. Not for a moment did it leave the tree, not even to find food or water. And slowly, like the tree itself, the bird started to die. Its brightly colored feather faded and it lost the gleam in its eye. अब सब उस पेड़ को छोड़ के चले गए, लेकिन एक तोता था वो उस पेड़ के साथ रहा. वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने अपना बचपन वहाँ बिताया था और धीरे धीरे वो भी उस पेड़ के साथ वीक होता चला गया. उसके फेदर्स जो थे वो झड़ना शुरू हो गए. उसकी ब्राइट आइज जो थी वो डल पड़ना शुरू हो गई. वन डे द किंग ऑफ द हेवन लुक डाउन एंड सॉ अ लाइट ग्लीमिंग ब्राइटली ऑन द अर्थ. गेटिंग क्यूरियस he came down to see it. Imagine his surprise when he saw that the light came from a small bird, weak from hunger and thirst. अब एक बार हेवन के राजा, स्वर्ग के राजा ने देखा कि धरती में से एक लाइट आ रही है. उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ कि ये लाइट आ कहाँ से आ रही है. तो उन्होंने देखा कि वो लाइट एक छोटे से पक्षी की आँख से आ रही थी जो भूखा और प्यासा वहाँ तड़प रहा था. Little bird, he said, don't you know that this tree is dying? Why don't you seek another tree where food and shelter is in plenty? You will surely die if you stay here. अब वो जो स्वर्ग के राजा थे वो तोते के पास आकर बोले कि तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? ये ट्री तो अब मर रहा है, इसे छोड़ के तुम कहीं और जाओ, वहाँ तुम्हें फूड और शेल्टर दोनों मिलेंगे. Sir, replied the parrot, this tree is a part of me. I was born here and grew up within the safety of its branches. The tree gave me life. How can I leave now when there is no one to see it on its final journey? उस तोते ने रिप्लाई किया कि सर, मैंने अपना बचपन यहाँ बिताया है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस ट्री को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये इस ट्री की लास्ट स्टेज है, मतलब ये मरने वाला है. The king of heaven was touched by these words. Dear bird, he said, I would like to grant you a boon. What do you desire? Grant that the tree is restored to life, said the parrot. उसकी बातों ने राजा का दिल जीत लिया. तो उन्होंने उससे पूछा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा. तो तोते ने कहा कि इस ट्री को इसकी लाइफ वापस दे दो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ. डन, replied the king of heaven with a smile.
Such true friendship is rare, and miraculously the tree was its old self again. Fresh, green leaves sprouted from its branches, flowers made splashes of brilliant colors as they nestled among the leaves. Once again in the tree stood tall and straight. जब तोते ने स्वर्ग के राजा से कहा कि मेरे ट्री की लाइफ जो है वापस दे दो, तो राजा ने कहा डन, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो ट्री था वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गया। उसकी लीव्स फिर से ग्रीन हो गई, वो फिर से स्ट्रेट खड़ा हो गया, उसके ब्रांचेस फिर से स्ट्रांग हो गई और वो पूरी तरह से अपनी जो जवानी होती है या जो यंग ट्री होता है उसकी फॉर्म में वापस आ गया था। एंड द पैरट, its emerald green feather glistened in the sunlight and its eyes shone with life. It flew about the tree with a song in its heart. Its friend was back after a long absence. और उस तोते का क्या हुआ, वो भी ठीक हो गया। उसकी जो आइज़ थी जो डल पड़ गई थी वो फिर से ब्राइट हो गई। उसके जो फेदर्स थे जो झड़ गए थे वो फिर से ठीक हो गए थे। इसलिए वो उड़ा और झूमता नाचता हुआ गा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो दोस्त था वो वापस ठीक हो गया था। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने प्रियजनों को, हमें अपने अपनों को उनके बुरे समय में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।